Good morning, my dear students. Good morning, sir. Once again, morning, everyone. My dear students, once again, I welcome in today's session. Will you please tell me about which chapter I was discussing? So, chapter 3rd. Chapter 3rd. Yes, sir. Two stories about flying. Good morning. Part 1, his first flight. Good morning, sir. Morning, bete. Good morning, sir. Morning, everyone. बेटे, will you please tell me कहाँ से हम लोगों को पढ़ना है? Will you please? Marius, can you listen me, please? Yes, sir. कहाँ से पढ़ना है बेटे? Sir, page number 35 पे. हाँ बताओ. पढ़ो एक लाइन. Sir, ऊपर से 5th line. पढ़ो तो वो He लाइन. waited a moment in surprise. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, dived the fish with a loud Okay. fell out. Ga. From here we have to study. 2-3 lines are as which we have studied, but once again we have to revise. Ga, he cried, begging her to bring him some food. Cow cola. She screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she saw just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. आइए. Ga, he cried, begging her to bring him some food. Means शिगुल ने जब अपनी माँ को देखा, when शिगुल saw her mother, his mother, कि उनकी माँ कुछ अरेंज कर रही है, भोजन के बारे में कुछ कर रही हैं, तो उसने अपने साउंड में, perhaps he was asking for, ऐसा लग रहा था, it was seeming कि he was asking for, वो कुछ मांग रहा है अपनी माँ से, क्या भोजन, फूड, कह रहा था, प्लीज कम टू मी विद फूड, मेरे पास आओ भोजन लेकर के. Gakola, she screamed back derisively, and but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. He screamed back, मतलब वह ग्वाकुला व्यंग करते हुए उत्तर में चिल्लाई, वो भी बोली जैसे शिवुल ने कहा, उसकी माँ ने भी चिल्लाया, पर वह चिड़िया दुख से पुकारती रही.
लेकिन she screamed back derisively, दुख से वो पुकारती रही, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream, और 1-2 मिनट के बाद वह खुशी से चीख पड़ी, चिल्लाई, स्क्रीम की. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him. उसने एक मछली का टुकड़ा उठाया और उसकी ओर चली. He leaned out eagerly. वह बहुत ही उत्सुकतापूर्ण तरीके से, उत्साहित होकर के अपने चोंच को, अपने बीक को आगे करके ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मां बस तुरंत आएगी और उसके मुंह में डाल देगी. Tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her, means he wanted to be nearer to his mother. वो अपने मां के करीब करीब अपने को बनाना चाहता था, इसलिए. और रॉक को वो छोड़ भी नहीं रहा था जिस पर बैठा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा उठ गया था. और her as she flew across, but when she was just opposite to him, लेकिन जब उसकी मां ठीक उसके सामने आई, she halted, रुक गई. Her wings motionless, मतलब she had stopped herself completely, पूरी तरीके से उसने रोक लिया अपने आप को. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. अब तो उसके जो चोंच थे शीगुल के, वह तो अपनी मां के चोंच तक पहुंचने से रहे, क्योंकि वो वहीं पर रुक गई थी. He waited a moment in surprise. वह कौतूहल बस कुछ पल इंतजार किया. Wondering why she did not come nearer, and he was thinking that why she was not coming nearer to him. वो ये सोच रहा था कि मां मेरे पास क्यों नहीं आ रही है. And then maddened by hunger, और फिर तो वो क्या किया, then maddened by hunger, और फिर भूख से वो तिलमिलाया. He dived at the fish. वह ऐसा लगा जैसे झपट्टा मार करके छीन लेगा उस मछली को. With a loud scream he fell outwards and downwards into space. वह गिर पड़ा. वहां चूंकि उसको खाने को चाहिए था, he was hungry, उसको मिला नहीं, आगे की ओर बढ़ा, गिर गया. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. बेटे, जब संघर्ष की पराकाष्ठा पर हम पहुंच जाते हैं तो वहां से हमें अच्छे तरीके से चलना आने लगता है. It was happening, the same thing was happening with शीगुल. और बहुत ही भूख में इतना तिलमिला उठा कि बस फिर क्या था, उसके पंख फैल गए और फिर वह उड़ने लगा. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. इस बार वह हवा को ठीक ठीक काट पा रहा था, अर्थात उसके पंख काट पा रहे थे. What he was fearing, कि जब वो उड़ेगा तो हो सकता है वह गिर जाए. इस बार वह उड़ चुका था. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब वह धीरे धीरे करके ऊपर नीचे उड़ पा रहा था. अब वह डर नहीं रहा था. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर तो वह एक बार उठा और ऊपर की ओर चला. Upwards, he started to go towards upwards. Ga 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 cola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. It means everyone of his family was waiting that when he'll start to fly. उसके घर के सारे सदस्य सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि वह कब उठेगा, my कब वह उड़ेगा. और जैसे ही उसने उड़ना प्रारंभ किया,
जैसे ही उसके अंदर से गिर जाने का डर, घायल हो जाने का डर जाता रहा, वह उसके घर के सारे लोग, उसके फैमिली, जितने फैमिली मेंबर्स थे, सब के सब उसके आसपास मंडराने लगे। अर्थात दे वर हेल्पिंग टू हिम, टू बी ऑल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ हो करके उसकी सहायता करने लगे एंड उसको करेज के बारे में बताने लगे। तो बेटे, he answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around his, curveting and banking and showering and diving. अब सब कुछ उसको सिखाया जाने लगा, धीरे धीरे करके उसको वो लोग सिखाने लगे। फिर दोनों उसके जो भाई और बहन थे, वो चारों ओर घोड़े की भांति आगे उछल करके तिरछी ऊपर उड़ती और नीचे डुबकी लगाते हुए उन लोगों ने देखा। मतलब हर तरीके से उसको पारंगत कर देना चाह रहे थे सबके सब। तो माय डियर्स, then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and carve, shrinking shrilly. It means अब तो वह पूर्णतया ये भूल गया, वह शिगुल, कि वह सदैव उड़ नहीं सकता था। वह भूल गया था कि वह तो ऐसा था कि उड़ नहीं सकता था, और वह बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ आगे की ओर उछल करके और डुबकी लगाने लगा, उड़ने लगा, डुबकी लगाने लगा, जो भी उसके फंक्शन होते हैं वो सब करने लगा। He was near the sea now, flying straight over it, fishing straight out over the ocean. He saw a vast green Sir, with a little ridge moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. He was near to sea now. इस बार वह समुद्र के पास था। Flying straight over it, एकदम उसकी सतह के सामने ही वो उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, एकदम उसके ऊपर, पानी की सतह के ठीक ऊपर इस बार वो उड़ रहा था। He saw a vast green sea beneath him. उसने अपने नीचे बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विस्तृत जल संचय को देखा, मतलब सागर को देखा। With little ridge moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और उसके अंदर छोटे छोटे टिले जो पानी के अंदर थे, उनको तैरते हुए उसने देखा, एंड और उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया, बीक साइडवेज दोनों ओर घुमाया, एंड काउड अम्यूज्डली, और प्रसन्न होकर के अपने साउंड में जो कुछ भी वो बोलता था वह बोलने लगा, वह शिगुल। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning of him, calling shrilly. His parents and his brothers, उसके माता पिताजी और उसके जो भाई लोग थे, and sister उसकी जो बहन थी, had landed on this green flooring ahead of him. मतलब हरे रंग का जो फर्श दिखाई दे रहा था उस पर उसके पास सब लोग बैठ चुके थे। had landed. They were beckoning to him. वे सब, they were calling to him. They were screaming and calling to him. सब लोग चिल्ला करके चीखते हुए उसको बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. और उसने डर से, भाई थोड़ा सा तो डर था ना, पहली बार उड़ा था, उसने डर से चीखते हुए अपने स्टैम्प्ड मतलब क्या होता क्या बेटे, है सर? स्क्रीन क्या कह रहे हो? स्क्रीन, स्क्रीम बोलो बेटे। यस सर। स्क्रीम मतलब चिल्लाना बेटे, साउंड करना। He dropped his legs and stand on the green sea. वो अभी डरते डरते अपने आप को वहां उतारा। His legs sank into it. पानी में थोड़ा डूबा उसका पैर। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. He screamed मतलब वो पुनः चिल्लाया। He cried once again with fright, with fearness. डर करके एक बार पुनः वह चिल्लाया, and attempted to rise again, flapping his wings. फिर से एक बार उसने उड़ने का प्रयास किया। हाँ बोलो
सर फ्लाइट मतलब। फ्लाइट, फ्राइट मतलब यस बेटे डर, सर। फ्राइट मतलब डर, फियर। सर फियर मतलब क्या बेटे? फियर मतलब भी वो डर का। हाँ, फियर मतलब भी डर होता है, फ्राइट मतलब भी डर होता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक सैंक विद क्या हंगर। होता है? SANK। सैंक डूबना, बेटे, डूबना। डुबान, सिंक का वो सेकंड फॉर्म है, सिंक, सैंक, संक। हो गया। यस। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थक चुका था, वह थका हुआ था, एंड वीक और कमजोर भी महसूस कर रहा था। ही वॉज फीलिंग वीक हिमसेल्फ with hunger, and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it. इस बार वह पानी की सतह पर, उसके पैर नीचे थे और वह पूरी तरीके से तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था। And around him his family was screaming. आसपास उसके घर के सारे लोग भी थे, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। Praising him, सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। Every one of his family was praising him. Wow, what a wonderful action is. And their beaks were offering him a scrape of a dogfish. और बेटे, और सभी लोग, उसके घर के जितने सारे सदस्य थे, सब लोग उसको कुछ न कुछ क्या, what was there? It was only and only, there was nothing, only fish. वहां मछली के सिवा कुछ था नहीं, तो सब लोग मछलियां भेंट कर रहे थे। He had made his first flight, क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी। और he had got success, means successfully he had his first flight, और पहली उड़ान उसने सक्सेसफुल तरीके से भर लिया था। Dears, what we learn from this chapter, let me explain. Dears, आपने देखा कि तैयारियां, हर प्रकार के प्रिपरेशंस, ऑल टाइप्स ऑफ प्रिपरेशंस, किसी तरीके की उड़ान भरनी हो करियर संबंधी, वेदर यू वांट टू बी अ डॉक्टर और इंजीनियर, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, जो भी आपका करियर हो, जो भी आपका गोल हो, बेटे वहां तक पहुंचने के लिए ओनली यू हैव टू स्ट्रगल, केवल आपको ही संघर्ष करना है। या इट इज नीड टू योर फैमिली सपोर्ट, आपके फैमिली सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि यहां पर शिगुल को पड़ती है। बट यहां पर कोशिश कौन करता है, आप ये देखें, शिगुल हिमसेल्फ। परिवार वाले चाहकर ही आपका क्या कर सकते हैं? अगर आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप नहीं चाहेंगे, तब तक आप ऊंची उड़ान आपके परिवार वाले कभी करा नहीं सकते आपका। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, we learn from this chapter, this story, कि at any cost we ourselves have to try for our best to get our goal, to get success. If we started, अगर हम शुरू हो गए, we'll get family support, the people of society will support also, everyone will support, सब लोग सपोर्ट करेंगे। My dears, as आपने देखा होगा, many times you have seen in your houses, there will be small children, small babies, जो ठीक से चल नहीं सकते हैं। ऐसे बच्चे हमारे और आपके घरों में होते हैं, और अक्सर सीढ़ियां सबके घरों में होती हैं। अक्सर बच्चे सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं, 2-3 सीढ़ी चढ़ जाते हैं, and all the members of the family fear, सब लोग डर जाते हैं। If the child is repeating this action 2-3 times, यदि वह बच्चा 2-3 बार ये कोशिश करता है, 2-3 सीढ़ियां चढ़ जाता है, 4-5 सीढ़ियां चढ़ जाता है, घर के सब लोग डर जाते हैं। बट 2-3-4 बार ये कोशिश करने के बाद वन ऑफ द फैमिली members come nearer to the child and he takes the child in his lap
and he goes on the top of the roof, go through the stairs. फिर परिवार का एक सदस्य आता है, उस बच्चे को गोद में उठाकर कहता है, अच्छा तू ऊपर छत पर चलना चाहता है, चल। अब वह सदस्य उस बच्चे को उठा करके और सीढ़ियों से होता हुआ छत पर ले जाता है, बोलता है क्या देखोगे, देखो देखो यही आना चाह रहे थे। तो माय डियर्स, if you are thinking completely that your family is supporting, it's very good, it is very essential for the life of a student, but as long as you will not come forward, no one will help you. बेटे कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता है जब तक आप स्वयं की सहायता नहीं करते। स्वयं आपको आगे आना पड़ेगा। बहुत सारे सपोर्टर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सपोर्टर मिल जाएंगे। बेटे अगर if you want to know, if you want to read the story of struggle, संघर्ष की कहानी अगर आपको पढ़नी है तो जीवंत कहानी आप लोग जाने, अरुणिमा सिन्हा और द सेकंड संतोष यादव, इन दोनों लोगों को आप पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि जब भी आपको जाना होगा तो अकेले ही जाना पड़ेगा। बेटे दूर जाना हो तो अक्सर हमको अकेले ही जाना पड़ता है और पास में जाना हो तो हम 2-4 लोगों के साथ भी जा सकते हैं। बट व्हेन यू विश टू गो वेरी फार फ्रॉम योर प्लेस, तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर। Definitely you will get your family support, but as long as you will not support yourself, जब तक आप अपने को सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका कोई फैमिली मेंबर आपका सपोर्ट नहीं कर सकता है। दशाल। Now बेटे, let us go towards the second, the black aeroplane, part 2 of the chapter 3, 2 stories about flying. One has been completed by all of us. Now let us go towards the second. The black aeroplane. In this story, there is a person who fears to fly an aeroplane, लेकिन वह उड़ाता है। इसी की स्टोरी हम लोगों को पढ़ना है। बेटे, let me read. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud. हाँ बोलो। Will you like to ask me anything, बेटे? कृष्णा? No, sir. तो हम आगे बढ़ें? बोलो। Yes, sir. Thank you. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be high up. हाँ. Please. Sir, what is the meaning of amusedly? क्या बेटे? Sir, amusedly मतलब क्या होता है? amusedly है बेटा, amusedly, amuse मतलब होता है आनंदित होकर के, खुश होकर के। amusedly is a adverb. ये एडवर्ब है। amusedly मतलब प्रसन्न होकर के। Is it over? तो I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. The moon was coming up in the east. The writer is saying, the narrator is saying, ये आप बीती एक घटना है उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। वह नरेटर खुद बोल रहा है कि जो चांद था, रात्रि का समय था, इट वॉज नाइट टाइम, और कमिंग अप इन द ईस्ट, पूर्व की ओर से चंद्रमा जो है वो आ रहे थे, और बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर सारे तारे चमक रहे थे।
देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, मतलब इट वॉज अ क्लियर स्काई, क्लाउडलेस स्काई, बिल्कुल भी बादल नहीं थे आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, मैं बहुत ही प्रसन्न था। आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी टू गेट मी अलोन माई सेल्फ, अपने आप को, खुद को अकेला पाकर के मैं बड़ा प्रसन्न था। हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब इतने ऊंचाई पर, कंट्री साइड मतलब एक देहात जैसा एक स्थान, उसके इतने ऊंचाई पर मैं अकेला होकर भी बड़ा प्रसन्न था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मैं डाकोटा वायुयान उड़ा रहा था। कहां से कहां तक ये उड़ता? ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस के ऊपर से, और कहां आ रहे थे? इंग्लैंड वापस आ रहे थे। डकोटा क्या होता है? डकोटा इज द नेम ऑफ एन एरोप्लेन, एक प्लेन का नाम है बेटे डकोटा। इज इट क्लियर? So the narrator was coming from his Dakota aeroplane. He was a pilot himself. वो पायलट थे, खुद ही चला रहे थे, और वो आ रहे थे इंग्लैंड। अब I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I was dreaming मतलब मैं जो है अपने पास्ट में चला गया था। ड्रीम करने का मतलब मैं कुछ सोच रहा था अपने अतीत के बारे में, मैं कुछ स्वप्न ले रहा था। कैसा कैसा स्वप्न था? एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली, अपने परिवार वालों के साथ में मैं जब था तब की बात मैं सोच रहा था। आई लुक्ड एट माय वॉच, और उसी समय मैंने अपने घड़ी को देखा। इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग, इट वॉज 1:30 AM, मतलब रात 12 बजे के बाद 1.5 घंटा बीत चुका था, 1:30 बज चुका था। अच्छा, I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I'm on my way to England, over. My dears, many times you have heard, as we converse to one another, pilot, हमारे जो जवान्स हैं, इन सब का जो कन्वर्सेशन होता है वो एक कोड पर कन्वर्सेशन होता है। कोई भी बात करते हैं, ओवर ओवर बोलते रहते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस के नियंत्रण कक्ष से जो है थोड़ा हमको बातचीत कर लेनी चाहिए। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। As I looked down past the nose of the aeroplane, मतलब जैसे ही मैंने वायुयान के अगले भाग से आगे देखा, अगले भाग से आगे की ओर मैंने देखा, क्या पाया? I saw the lights of a big city in front of me. मैंने अपने सामने शहर का एक बहुत बड़ा प्रकाश देखा। फिर तो I switched on the radio and said, मैंने रेडियो को ऑन किया और कहा, बेटे यहां रेडियो का मतलब वो रेडियो नहीं जो हमारे और आपके घरों में होता है, जिसको चालू करके हम आकाशवाणी सुनते हैं। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मैं हूं अवनीश कुमार बरनवाल, और आज के ताजा समाचार के साथ मैं आपके बीच। ये वो रेडियो नहीं है, वो रेडियो जिससे वो सीधे संवाद कर सकते हैं अपने कंट्रोल रूम को। पेरिस नियंत्रण कक्ष, मतलब वो कहते हैं कि पेरिस कंट्रोल रूम, डकोटा DS-088, लेट मी रिमूव हियर, कहते हैं कि पेरिस नियंत्रण कक्ष डकोटा DS-088 है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, ओवर, मतलब मेरी बात समाप्त हुई, उन्होंने बता दिया। किसको? पेरिस कंट्रोल रूम को। The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088 over. वहां से वहां से वो उत्तर उनको मिलता है कि DS088 मैं आपकी आवाज को सुन सकता हूं और आपको पश्चिम की तरफ 12 डिग्री मुड़ जाना चाहिए। तो DS088 ओवर, समाप्त। आई चेक द मैप, 12 डिग्री मुड़ने को कहा गया था। आई वॉज रिक्वेस्टेड टू टर्न 12 डिग्री टुवर्ड्स द वेस्ट। आई चेक द मैप एंड कंपास, मैंने तुरंत मैप निकाला, कंपास निकाला। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न टू डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। मतलब मानचित्र और दिशा सूचक यंत्र मैंने निकाला। बेटे, लेट अस टॉक अबाउट मैप एंड कंपास। रात में जो ट्रैवल करते हैं, जंगल से होकर जो ट्रैवल करते हैं, समुद्री मार्ग से जो ट्रैवल करते हैं, वायु मार्ग से जो ट्रैवल करते हैं, फदोज ये दोनों चीजें बहुत ही आवश्यक होती हैं। वैसे हमारे यहाँ दिशा सूचक एक छोटा सा यंत्र मिलता है। यदि रात में आप भूल जाओ तो उस दिशा सूचक यंत्र से आप पता कर सकते हो कि आप किस दिशा की ओर चल रहे हैं। खैर, इन्होंने अपने मैप और कंपास को देखा। स्विच ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर ईंधन का टैंक चालू किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज, और फिर डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। अच्छा, I'll be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. मतलब मैं नाश्ते के ठीक समय पहुंच जाऊंगा, मैं नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा। He is thinking, the narrator is thinking that at the time of breakfast he'll arrive there. मॉर्निंग होते होते नाश्ते के समय मैं पहुंच जाऊंगा। A good big English breakfast, मैंने ऐसा सोचा, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। वाओ, सब कुछ ठीक था। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन इजी फ्लाइट, बहुत बढ़िया, बहुत सरल उड़ान थी, आराम से मैं उड़ते हुए जा रहा था। तो जब आराम से ये उड़ते हुए जा ही रहे थे, व्हेन ही वॉज गोइंग इजीली बाय फ्लाइंग, तो फिर समस्या कहां थी? बस, वेयर देयर इज प्रॉब्लम देयर इज सॉल्यूशन। तो बेटे, Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I didn't have enough fuel to fly around them to the north or south. It means the narrator is saying that he was going easily. He was flying easily. आराम से उड़ते हुए चले जा रहे थे। बट पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। नो, द नरेटर इज सेइंग कि 150 किलोमीटर अभी दूर था पेरिस, और लगभग उनको आधे घंटे का समय लगता वहां पहुंचने में। बट बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, तब तक मैंने देखा बादलों को। स्टॉर्म क्लाउड्स, बड़े भयंकर बादल थे। They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. और देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे सामने एक बहुत बड़ा काला पहाड़ खड़ा हो। I knew I could not fly up over them. मैं जानता था कि इनके बीच में उड़ा नहीं सकता। And I didn't have enough fuel to fly around them to the north or south. उत्तर या दक्षिण की तरफ मैं मुड़ जाऊं, इतना फ्यूल भी मेरे पास नहीं था, इतना पेट्रोल भी नहीं था। व्हाइट पेट्रोल उसमें पड़ता है एरोप्लेन में, तो ईंधन भी इतना नहीं था कि मैं किसी दूसरी दिशा में चलूं। I ought to go back to Paris.
मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए. The narrator had decided to himself, I thought but I wanted to get home. But दूसरी तरफ इनको घर भी पहुंचना था. I wanted that breakfast. मुझे वो नाश्ता भी चाहिए था. I'll take the risk. I thought, मैंने सोचा मैं रिस्क लूंगा. अर्थात अपने वायुयान को मैं उड़ा दूंगा इसी में. And flew them over old Dakota straight into the storm. और पुराने डकोटा को सीधे आंधी में मैंने उड़ा दिया. Inside the clouds, everything was suddenly black. अब as I entered into the middle of black clouds, जैसे ही काले बादलों के भीतर मैं पहुंचा, तो ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ अचानक सा ऐसा लगने लगा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया. It was impossible to see anything outside the aeroplane. बाहर तो मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा था. एरोप्लेन से बाहर मैं कुछ नहीं देख पा रहा था. The old aeroplane jumbled and twisted in the air. जो old aeroplane था, the old aeroplane jumbled and twisted in the air. अब वो जो डकोटा था वो ऐसे ऐसे चलने लगा. I looked at the compass. मैंने कंपास को देखा. I couldn't believe my eyes. मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था. The compass was turning round and round. वो जो कंपास था, जो दिशा सूचक यंत्र था, वो खुद भी इधर उधर घूम रहा था. It was dead. And at last I found that it was dead. It was broken down. खराब हो गया. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ खराब सा हो गया. I tried the radio. मैंने रेडियो पर दोबारा कोशिश किया. Paris control, can you hear me? He's trying to talk to the Paris control room में वो बातचीत करना चाह रहे हैं. There was no answer. He was not getting any type of answer from the Paris control room. The radio was dead too. Oh, सब कुछ डेड कर गया भैया. सोचिए, सारे यंत्र यदि खराब हो जाते हैं, और आप अभी तो हम अपने घरों में रहते हैं और कभी कभी पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है. We can't budge. हम डरने भी लगते हैं और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं. तो हमारा जब ये हाल अपने घरों में होने पर होता है, तो यू कैन थिंक व्हाट वुड बी द कंडीशन इफ द नरेटर विल बी इन द स्काई. यदि वो स्काई में होगा, आसमान में होगा, तो क्या हाल हुआ होगा. तो माय डियर्स, इट्स इनफ फॉर टुडे बिकॉज नाउ इट इज रिमेनिंग 1 minute. तो अब आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है. नेक्स्ट डे आई विल कंप्लीट द चैप्टर एंड देन वी विल. हाँ बेटे, one question is remaining from you. Many times you have asked me, sir, please tell me about the half-yearly syllabus. Yes, am I right? Yes, sir. Half-yearly Yes, sir. syllabus, half-yearly examination का sir. syllabus आपको चाहिए. Listen to me, my dears. बेटे, actually I have talked with many. अगर अपने मन से मैं कुछ बताऊं, तो it will not be clear. So I